فیصل آباد پولیس میں بڑی سزائیں، محکمانہ سزاؤں اور کرمنل ریکارڈ کے حامل 52 پولیس اہلکاروں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ہٹائے جانے والوں میں 1 انسپکٹر، 8 سب انسپکٹر، 11 SI، 3 حوالدار، 4 ڈرائیورز اور 25 کانسٹیبلز شامل ہیں، جبکہ ہٹائے جانے والے اہلکاروں میں سے 22 بڑی محکمانہ سزا اور 30 کرمنل ریکارڈ کے حامل تھے۔ اہلکاروں کو فوری عہدوں سے ہٹا کر پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 52 پولیس اہلکاروں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ہاؤسنگ کالونیز کہاں بن سکتی ہیں، انڈسٹری کہاں لگے گی، صحت پارکس اور فلائی اوورز کی سہولیات کی نشاندہی کے لیے بنایا گیا ماسٹر پلان فائنل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد شہر میں ہونے والی ترقی کو منظم شکل دینے کے لیے ماسٹر پلان 2021-41 کا ڈرافٹ مکمل ہوا۔ ماسٹر پلان ہاؤسنگ کالونیوں، انڈسٹری، کمرشل اور زرعی زمینوں کی نشاندہی، ٹرانسپورٹ کی ضرورت، سڑکوں کے جال اور شہری سہولیات کی فراہمی، صحت، پارکس، فلائی اوورز اور دیگر سہولیات کی نشاندہی کرنے کے لیے بنایا گیا، مگر اعتراضات کے باعث ماسٹر پلان پھر لٹک گیا۔ ڈیولپرز نے اعتراض اٹھایا کہ پہلے سے موجود پیری اربن پلان میں شہر کو 1200 مربع کلومیٹر تک پھیلایا گیا، مگر نئے ماسٹر پلان میں رقبہ کم کر کے 650 مربع کلومیٹر کر دیا گیا، جس سے مستقبل میں کالونیاں نہیں بن سکیں گی۔ شکایات کی روشنی میں ماسٹر پلان کا مکمل جائزہ لینے کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے اراکین ماسٹر پلان میں ترامیم کے لیے سفارشات مرتب کریں گے۔ DGFDA ڈاکٹر فیصل عظیم نے بتایا کہ ڈیولپرز کے مسائل ایڈریس کیے جائیں گے۔ یہ اسکیچ جو ہے اس کو ہم نے پبلک کر دیا کہ جی ابھی تک جو ہے عثمانیز جو ہیں ان لوگوں نے دے ہیو میڈ اپ دس مائنڈ کہ جی اس طرح سے یہ ہونا چاہیے، اس کے یہ خد و خال ہونے چاہیے۔ اب پبلک کا راہ جو ہیں وہ ہم نے پچھلے ویک میں اس کو کھولا ہے، اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں آراء بھی دے رہے ہیں، تجاویز بھی دے رہے ہیں، تحفظات بھی ہیں، کچھ پہ کچھ غم و غصہ بھی ہے، لیکن بے چینی جو ہے یہ بے جا میں کہوں گا ابھی اس کی آؤٹ آف پلیس ہے، کیونکہ اس میں ان کی تجاویز کے بعد ان کی جو سجیشنز ہیں اور آراء ہیں ان کو انکارپوریٹ کریں گے۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کنوینئر، جبکہ ڈائریکٹر مار ایوب، ڈائریکٹر حسن رضا، ڈائریکٹر حسن ظہیر، ڈپٹی ڈائریکٹر راحیل ظفر اور اقرا مرتضی بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ لوکل گورنمنٹ کا اہم قدم، ای ٹینڈرنگ سسٹم مطابق 5 کروڑ اور زائد کے ترقیاتی منصوبوں کی ٹینڈرنگ آن لائن ہوگی۔ اگلے مرحلے میں 100% ٹینڈرنگ آن لائن کی جائے گی۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ای ٹینڈرنگ کا نظام متعارف کروا دیا گیا۔ ٹینڈرنگ میں شفافیت لانے کے لیے منصوبہ شروع کیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 5 کروڑ کی لاگت والے منصوبوں کی ایک ٹینڈرنگ ہوگی۔ اس سے قبل مینول طریقے سے ٹینڈرنگ ہوتی تھی اور مختلف کانٹریکٹرز اجارہ داری بنائے ہوئے تھے۔ لوکل گورنمنٹ حکام کے مطابق پہلے مرحلہ میں بڑے منصوبوں کی ٹینڈرنگ ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلہ میں تمام منصوبوں کی ای ٹینڈرنگ ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کی ٹینڈرنگ آن لائن ہوگی۔ صوبائی سطح پر مانیٹرنگ کے لیے مرکزی ڈیش بورڈ ہوگا۔ ای ٹینڈرنگ سے کاغذی کارروائی سے مکمل نجات مل جائے گی اور کاروبار میں بہتری آئے گی۔ ای ٹینڈرنگ کا نظام یہاں پہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ ای ٹینڈرنگ کے نظام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا چند افسران کی ملی بھگت سے لوگوں کو پول کر کے ٹینڈر دے دیے جاتے تھے۔ اب اس طرح بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ جو بھی ٹھیکیدار پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹر ہے وہ اب ای ٹینڈرنگ کے ذریعے اپنے بڈنگ میں حصہ لے سکیں گے، پرنٹ نکلوا سکیں گے، چلان دے سکیں گے۔ اس میں جو شخصی چوائس ہوتی تھی وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ زیادہ ٹھیکیداروں کا مقابلہ ہونے سے کام میں بہتری آنے کا بھی امکان ہے۔ ای ٹینڈرنگ کے لیے دنیا بھر میں کہیں سے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت میاں غلام قادر المعروف بابا گجر پیر کے 17ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ پہلے روز محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ معروف نعت خواں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ الائڈ اسپتال کے مختلف وارڈز کورونا مریضوں سے بھر گئے، جس کے بعد جلند فا غلام آباد کو کورونا مریضوں کے لیے فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری کہتے ہیں الائڈ اسپتال میں 261 جبکہ DH پنجاب بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز کی ماہ اگست کی کارکردگی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ ضلع فیصل آباد سبقت لے گیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان پہلے اور اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی 1 اگست سے 27 اگست تک کی کارکردگی رپورٹ مرتب کر دی گئی، جس میں ضلع فیصل آباد سبقت لے گیا۔
2 असिस्टेंट कमिश्नर्स पहली 2 पोजीशंस ले गए। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान पहले और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल दूसरे नंबर पर रहे। फैसल सुल्तान ने 17 में से 14.3 पॉइंट्स लिए, उमर मकबूल 14.2 पॉइंट्स ले सके। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने बताया कि प्राइस चेकिंग, सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की बोलियों के अमल की निगरानी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर की इंस्पेक्शंस, सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का इजाला भी किया गया, जिस पर ये रैंकिंग की गई। रैंकिंग है, ये एक ऐप बनी है, उसके अंदर जो कंसर्न एसी है वो फील्ड में खुद जाके और जिसके अंदर मंडियों के अंदर ऑक्शन की मॉनिटरिंग है, लैंड रिट्रीवल, रेवेन्यू रिकवरी, प्राइस कंट्रोल, पीएम पोर्टल की कंप्लेंट वगैरह, इस तरह के जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं और उनकी जो रोज़ की बुनियाद पे जो वहाँ पे शो हो रहा होता है कि क्या काम हुआ और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, उसकी बेस के ऊपर जो ये रैंकिंग जो हुकूमत पंजाब जो मरतब कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी अराजी काबजीन से वागुजार कराने पर भी पॉइंट्स मिले हैं। डिवीजनल कमिश्नर साकब मनान ने टॉप पोजीशन मिलने पर सराहा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पहला अजीमुशान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद चक नंबर 330 गाफबे में मुनक्किद हुआ। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मेजर रिटायर्ड नदीम शहजाद, कर्नल आतिफ आसाद चौधरी, मोहम्मद अफसल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नैयर शिराजी से। जी नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीरमल के नवाही चक नंबर 330 गाफबे में जो है आल देहाती जो है फुटबॉल टूर्नामेंट फ्लड लाइट का एहतमाम किया गया था, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर इतना अच्छा टैलेंट देखा गया है कि इंटरनेशनल लेवल टाइप की यहाँ पर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड देखने के हज़ारों की तादाद में शायकीन थे। यहाँ पर जो जीतने वाली टीमें हैं उनमें इनामात भी तकसीम किए गए, इनामात तकसीम किए हैं इलाके की हर दिल अजीज़ शख्सियत मेजर रिटायर्ड नदीम शहजाद ने। उनके यहाँ जो दीगर अजीज़ मेहमान हैं जिनमें कर्नल आतिफ आसाद लाहौर से स्पेशली ये टूर्नामेंट देखने के लिए तशरीफ लाए, इलाके की नामवर शख्सियत है, चौधरी जवेद फरूक जैश है, चौधरी अफजल है, दीगर अहम शख्सियत मौजूद हैं। मेजर नदीम शहजाद से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। मेजर साहब, बड़ा अच्छा ग्राउंड, बड़ा अच्छा मैच खेला गया, आप क्या कहेंगे इन नौजवानों के बारे में? थैंक यू शराजी। आज मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये हमारा फ्लड लाइट टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आखिरी दिन तक पहुँचा है और बहुत मज़ा आ रहा है कि जिस तरह टीम्स में जोश देखा है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखा गया है। ये हमारे दोबारा कोरोना के बाद पूरे जो ग्राउंड हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो गए हैं और हर तरफ जो है लोग खुशियाँ बांट रहे हैं, टीमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। और मैं स्पेशली अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जिसमें मेरे भाई कर्नल आतिफ आज़ाद साहब लाहौर से आए, मेरे मुअज़्ज़ज़ बाकी मेहमान चौधरी जवेद फरूक जैश साहब और बाकी दीगर तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारे चक नंबर 330 जो मेरा आबाई गाँव है इस पर आके इन्होंने हमारी खुशियों में इजाफा फरमाया। थैंक यू। आज जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मेजर नदीम शहजाद की बात सुनी है वो बड़ा खुश है और देहाती लेवल पर इतना बड़ा टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। टैलेंट यहाँ पर जो है देखा गया है। झूमर पार्टी भी हुई स्पेशल, डेरा गाजी खां से झूमर पार्टी यहाँ पर आई थी। यहाँ पर लोगों ने बहुत रंगारंग ये प्रोग्राम को महसूस किया है। दीगर जो शुरका है यहाँ इलाके के अहम शख्सियत भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर सब लोग जो है बड़ा खुश है। और मेजर नदीम शहजाद का ये कहना है कि हमारे इलाके में टैलेंट की कमी नहीं है, इस टूर्नामेंट को एक मॉडल बनाकर जो है यहाँ से टैलेंट तलाश कर। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगी खाद मजीद महंगी, जंग में डीएपी खाद की कीमतों में फिर इजाफा, कीमत 6000 से बढ़कर 6500 रुपए हो गई। डीएपी खाद महंगी होने से काश्तकारों को परेशानी का सामना। जंग समेत दीगर अजला में डीएपी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में न लाया जा सका। डीएपी की कीमत में 400 रुपए इजाफे के बाद 6500 रुपए तक जा पहुंची, जबकि डीलर्स की जानिब से फरोख्त कम कर दी गई। इस हवाले से काश्तकारों का कहना था कीमतों में इजाफे के सामने हुकूमती सब्सिडी भी काश्तकारों के लिए गैर मौसर है। डीएपी खाद महंगी होने से काश्तकारों को फी एकड़ अखराजात में मुश्किलात का सामना है। मार्केट का रेट 6500 रुपये चल रहा है मार्केट में, और कंपनी ने इस रेट में सेल भी बंद कर दी है और 7000 का भी अंदेशा, आवाज़ें आ रही हैं कि 7000 तक चल जाए। अगर गवर्नमेंट ने अगर कंट्रोल ना किया डीएपी के रेट का तो आने वाली फसल में नुकसान दे। अगर खाद की कीमत ज़्यादा होवे तो आमद फसल की थोड़ी होवे तो रेट ज़्यादा होने की वजह तो काफ़ी परेशान होता है काश्तकार। एक साल दे विच डीएपी पहले ओदा रेट आई 3500, 3000, 3200, हुण 6500 मिल रही है। एक साल के अंदर इतनी महंगी हो गई है, जिमीदार ही छड़दा पिया। जिले सदर किसान बोर्ड नदीम हैदर शाह का कहना था कि खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार परेशान हैं। आइंदा आने वाली फसलात की पैदावार भी मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। 400 रुपए कुछ 4 दिन पहले इन्होंने बढ़ाया है कंपनियों ने, और सेल अभी बंद है और तकरीबन 6500 रुपए 6550 रुपए में मार्केट चली गई है।
और 7,000 अगर रेट हो गया, 6500 भी कोई कम था, ये 7,000 अगर रेट हो गया तो 7,000 रुपए में ज़मींदार उसको कहाँ से डालेगा। किसानों का कहना था कि डीएपी महंगी होने से गंदम की फसलात पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। डीएपी की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। डीएपी की कीमतों में जहां इजाफा काश्तकारों के लिए मुश्किलात का सबब है, वहीं सेल्स रुकने से किसान दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों की जानिब से कीमतों पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी डीएपी खाद नायाब हो चुकी है और ब्लैक में 6700 रुपये तक फरोख्त होने लगी। काश्तकारों की चीखें निकल गईं। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस शोबा ज़राअत भी मुतासर होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई। काश्तकार कहते हैं डीएपी खाद की शॉर्टेज से ब्लैक में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। डीएपी खाद का सरकारी रेट 6100 रुपये जबकि 6700 रुपये में फरोख्त हो रही है। कभी खाद महंगी की जा रही है तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। सानू अगे 40-4500 तो अगे आज तो 2-3 महीने मिल रही सी ते हुण इस दा रेट उन्होंने बढ़ा दिता। गवर्नमेंट दा रेट हो गया 6100 तो इन्होंने बिलाय करके तकरीबन 67-6800 दी बेच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़राई अफसरान ने डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद के अहकामात को भी नज़रअंदाज कर दिया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और डायरेक्टर के अहकामात के बावजूद खादों की सरकारी रेट लिस्टें अवेजा नहीं करवाई गईं और ना ही सरकारी रेट पर खाद फरोख्त हो रही है। खाद डीलर मुबैना तौर पर मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। सरपरस्ती आला किसान बोर्ड सैयद नूरुल हसन शाह ने किसानों को 8 सितंबर को गुजरांवाला में होने वाले धरने में शमूलियत की दावत देते हुए कहा, हुकूमत की ज़राअत कुछ पॉलिसियां जारी हैं। डीएपी खाद की कीमतें कंट्रोल करना और सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाना हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो इस माफिया के खिलाफ जल्द अज जल्द नोटिस लें। इस सिलसिले में हमारा एहतजाज 8 सितंबर को गुजरांवाला डिवीज़न में हो रहा है। तमाम काश्तकार भाई उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ये जो हुकूमत है इसने तब्दीली के नाम पर ज़राअत कुछ पॉलिसी अपनाई हुई है जिसकी वजह से ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया है और ज़मींदार मफलूज होकर रह गया है। सरपरस्त किसान बोर्ड ने मजीद कहा, महंगाई से किसान पिस कर रह गया जबकि सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। आए रोज खाद और बीज की कीमतें बढ़ रही हैं जिस वजह से काश्तकार भाई खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से खादों और बीज पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। टोबा टेक्सिंग और चिन्योट में आटा नायाब। शहरी यूटिलिटी स्टोर से आटा न मिलने पर परेशान है। बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। आटा ना मिलने के बायस शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। शहरियों का कहना था यूटिलिटी स्टोर्स पर बाकी तमाम अशिया मिल रही हैं मगर आटा दस्तयाब नहीं। बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटा नहीं है, 5-7 दिन तो हो गया आटा नहीं आ रहा है। अगला 15 दिन ही हो गए आटा नहीं मिल रहा है। घी चीनी दस्तयाब है वो मिल रही है और आटा नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से। बकाया हर चीज़ दस्तयाब है। वो आटे की किल्लत है वो भी हुकूमत को करनी चाहिए पूरी। शहरियों का कहना था यूटिलिटी स्टोर से 950 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला बाजार में 1200 रुपए का मिलता है। इंसामिया की अदम तवज्जी के बायस यूटिलिटी स्टोर पर कोटा खत्म हुआ और आज चौथे रोज भी आटा नहीं पहुंच सका। 2-2.5 महीने के बाद आटे का कोटा बहाल हुआ था और वो भी अब 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया और 3-4 दिन हो चले हैं। अब कोई आटा नहीं है, कोई दालें नहीं है, घी की भी शॉर्टेज है। कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले तो दुकानों पे बहुत महंगाई थी और यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे कि वहाँ से सस्ता काम मिलेगा। यहाँ पर ना घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। जब भी आते हैं अभी आया नहीं है। खरीदारों का मजीद कहना था गुज़िश्ता हफ्ते खुदा खुदा करके यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह बाद आटे का कोटा बहाल हुआ था लेकिन अब फिर आटा ना होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा और न्यूज़ टीम के हमरा तैयब सैफ, टोबा टेक्सिंग। लालपुर पुलिस कम्प्लेक्स में लगे ठंडे पानी के प्लांट से पुलिस एहलकार और साइलिन गर्म पानी पीने पर मजबूर हो गए। एहलकार बर्फ खरीद कर ठंडा पानी पीने लगे। तर्जुमा ट्रैफिक पुलिस कहते हैं प्लांट तो फाल हालत में है।
लालपुर पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुलिस एहलकार और साइलिन ठंडे पानी से महरूम हो गए। 5 माह कबल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ठंडे और साफ पानी के प्लांट का इफ्तिताह किया था। पुलिस दफातर का रोजाना विजिट करने वाले हजारों शहरी भी प्लांट से मुस्तफीद होते थे। SSP इन्वेस्टिगेशन समेत 7 अफसरान के दफातर कॉम्प्लेक्स में है। सिविल लाइन और रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का अमला भी कॉम्प्लेक्स में बैठता है। पुलिस एहलकार भी बर्फ खरीद कर पानी ठंडा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था तफ्तीश के लिए DSP दफ्तर आए मगर ठंडा पानी मुयस्सर नहीं, पानी कंटेन से खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। प्लांट में ठंडे पानी की सहूलत फराहम की जाए। तफ्तीश वास्ते आए हैं ते पानी पीने वास्ते आए हैं ते पानी क्यों गर्म ते नहीं पीता गया ते हुण कितों बाजारों ले आके पीने। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि प्लांट ठीक और फाल हालत में है। हमने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त हालत में है, पानी आ रहा है, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर हो रहा है तो और साफ पानी आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लालपुर कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ ये साफ पानी का प्लांट यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों एहलकारों और विजिट करने वाले हजारों साइलिन को ठंडे की बजाय गर्म पानी से मुस्तफीद कर रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद यॉन मार्केट के इलेक्शन 7वां एग्जेक्टिव मेंबरान बिला मुकाबला कामयाब हुए, जबकि 2 कॉर्पोरेट जबकि 5 एसोसिएट क्लास के एग्जेक्टिव शामिल हैं। सूतर मंडी फैसलाबाद यॉन मार्केट के इलेक्शन 2021 और 22 के नताइज सामने आ गए हैं। एग्जेक्टिव की 7 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं और 2 कॉर्पोरेट क्लास के एग्जेक्टिव जबकि 5 एसोसिएट क्लास के एग्जेक्टिव कामयाब हुए। कॉर्पोरेट क्लास से कैसर शम्स गुच्चा और मोहम्मद तमान अफजल कामयाब हुए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का दौरा फैसलाबाद, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत फूड पैकेट्स तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने लासानीपुरी सरगोदा रोड पर कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत खाना तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि दुनिया जहान की रौनकें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हैं। कोई भूखा ना सोए इमरान खान का विजन है। रियासत मदीना का काम गरीब की मदद करना था। इस बात का अहमकों ने मजाक उड़ाया। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत कायम हुई और उन्होंने रियासत मदीना के असूलों की बात की तो यहां पर बहुत सारे अहमकों ने उस चीज का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आप सारी दुनिया को लंगर खाने पे लगा दें, आप सारी दुनिया को भीख मांगने पे लगा दें, लोगों को रोजगार दें, रोटी ना दें। आप रोजगार दे रहे थे जब इसी शहर में पावर लूम जो है वो कबाड़ के भाव बिक रही थी। शहबाज गिल ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, कहा कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म आम आदमी का सोचता है जबकि नवाज शरीफ का सारा टब्बर बाहर है। इसने सैकड़ों दौरों पर लाखों डॉलर खर्च किए लेकिन इमरान खान ने पैसा बचाकर गरीबों पर लगाया। इमरान खान ने सबसे पहले गरीब का सोचा, उसको सोने के लिए पनाहगाह दी ताकि छत मिले, खाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया। गरीब आदमी ने लंदन में फ्लैट्स नहीं लेने, गरीब आदमी का काम इतना तो ये जो कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम है इमरान खान का, दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ जिसका आज हमने जायजा भी लिया और यहाँ पर जो खाना था वो भी तकसीम किया। उन्होंने बताया कि किसान को 1100 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। गन्ने से भी इसने अच्छे पैसे कमाए। जो किसान को 1100 अरब आपने दिया है उनकी जेबों में अजाफी किया है, क्या उससे खेतों में नौकरियां नहीं आ रही अजाफी? ज्यादा लोग नहीं लगेंगे? अगर गन्ने के खेत की पैदावार डबल हो जाएगी तो किसान के 2 बच्चे वहां पर काम कर लेंगे जो पहले एक करके खाता था। असल बात तो गरीब आदमी 2 रुपए की 2 वक्त की रोटी चाहता है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने मुस्तहकीन में खाना तकसीम किया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में काम होते देखा और चैनल के सहाफ़ती किरदार को सराहा। कहा कि सिटी 41 बहुत ज्यादा देखा जाता है। उन्होंने मुल्की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल किया। कमेटी बराए तालीम और तरबियत के चेयरमैन और मेंबर कमेटी बराए इतलात और नशरियात सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सिटी 41 ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वो 2 दिन से फैसलाबाद में हैं। सिटी 41 के बारे में बहुत कुछ सुनने का मौका मिला। जितना ज्यादा ये चैनल देखा जाता है इससे बहुत मुतासर हुआ। सिटी 41 पूरे डिवीजन की वाकयाती कवरेज कर रहा है, इसलिए मैं अपनी खुशी का इजहार रजिस्टर कराना चाहता हूँ। और मैं बड़ा खुश हुआ आपके ये सारा सेटअप देख के, नौजवान बच्चों से मिलके, उनसे गुफ्तगू करके। और मैं 1-2 दिन से यहाँ हूँ और जितनी व्यूअरशिप में देखता हूँ आपके चैनल की यहाँ पे, और जिस तरह आपको
आप वाकयाती कवरेज कर रहे हैं और शहर की पूरी ज़िंदगी को स्क्रीन पे ला के दिखाते हैं, ये बड़ा काबिल सताइश है और मैं ज़रूर अपनी खुशी का इजहार जो है वो रजिस्टर कराना चाहता हूँ। इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत की कारकर्दगी को अड़े हाथों लिया। कहा कि महंगाई और गैर मुल्की कर्जे बहुत बढ़ चुके, पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा है। कर्जे आपने दुगना तिगना कर दिए, क्या कमाई की आपने? स्टॉक एक्सचेंज जहां नवाज शरीफ छोड़ के गया था, आज तक उस फिगर को टच नहीं किया उसने, उससे नीचे नीचे ही चल रही है। क्या किया आपने? महंगाई उसके दौर में 2-3% थी, आप डबल डिजिट में ले गए उसको, क्या गेन किया आपने? सी पैक वो लेके आया था अरबों की सरमायाकारी, आपने उसे बर्बाद करके एक खड्डा सड़क बना के रख दिया। फॉरेन पॉलिसी में आपको बता चुका हूं कि आप अकेले हो चुके हैं, बाकी क्या आपकी कारकर्दगी? मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबंदी पर उनका कहना था कि ऐसी बातें 20-25 साल से सुन रहे हैं, सिर्फ इख्तलाफ राय है और कुछ नहीं। बातें मेरा ख्याल है डोगर साहब, आप चूंकि बड़े तवील अरसे से हैं सहाफत में, अगर आप रिकॉल करें तो ये बातें आप 20-25 सालों से सुन रहे होंगे कि जी इंतशार आ गया है तो 2 दड़े बन गए हैं, तो एक दड़ा शहबाज शरीफ का है तो एक दड़ा नवाज शरीफ का। देखें, राय का इख्तलाफ होता। मुस्लिम लीगी सेनेटर का कहना था कि सरहद पार आने वाली तब्दीली के बाद हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि जमहूरियत की मजबूती के लिए निज़ाम का तसलसल जरूरी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फैसलाबाद का एजाज पंजाब से बिशारत अजीज जसपाल कायमा कमेटी बराए डेयरी फार्मिंग के मेंबर नामजद। बिशारत जसपाल कहते हैं भरपूर काम करके फील्ड को मजीद कामयाब बनाएंगे और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले बिशारत अजीज जसपाल को डेयरी फार्मिंग कमेटी का मेंबर नामजद भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब चिन्योट डीपीओ बिलाल जफर की पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग। डीपीओज ने जिला में अमन अमान, क्राइम की सूरत हाल और अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीपीओ की मोटरसाइकिल चोर, मवेशी चोर और डकैतों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत भी की गई है।